Happy Sunday, everyone. Hello, hello. Do you guys know about the Black Friday sale? Have you gone, checked out Reddish.com, shop from us? What's happening on that? I've been packing orders since morning, and people are telling me, ये size क्यों नहीं है आपके पास, वो size क्यों नहीं है आपके पास? I'm sorry, I know sizes are running out a little bit. We'll try and restock, guys, but we'll try and restock with a new collection. So you have to give us some time as we do that. We have a very, very special guest who's joining us today. Favorite actor, yeah, she is amazing. Ulka, right? She's amazing. So I can totally see why we are all excited to chat with her today. She is the OG Jhansi Ki Rani. Such an amazing thing even for us कि उनके जैसा कोई हमारे साथ में हमारे पास में आ रहा है, हमारे पॉडकास्ट पे आ रहा है. It means so much. I'm just very lucky that I have this amazing fan who's in here, who is just so supportive, so kind to me all the time. So yeah, I have all the love for you guys right back there. There she is. Hi. 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 How are you? I'm good. How are you? Very well, thank you. Thank you for having me on this live, finally. It's our pleasure, totally our pleasure. And for everyone who's joining, I think no introductions needed. But then again, Ulka is someone who, since her childhood, has been in the public eye. She's been doing acting, she's been doing music videos, recently movies as well. So very illustrious career. Thank you. Thank you so much. Yep, and I think claim to fame, perhaps Manu from Jhansi Ki Rani. That was probably Thank you. like the. Of course, we'll talk through your journey, but I think how different chapters of your life unfolded. So many people are joining us today. There were so many people who were telling me, Ulka, that they basically saved up this just to, like make sure they could join in here and just look at the Oh, just so really sweet. inspiring a lot of women. And I think what really struck with people also was the fact that when they got to know that you are also petite, it was Oh, another point of connection for people. it's a major story of my life. Major. Major Because story. Okay. it's Yeah. been a big deal about my life, and I have, of course, had my fair share of troubles. And yeah, but I'm so proud. I'm so proud I've come my way. And I think I'm so proud of this brand the niche that you're creating. And I think as a little girl, as a teenage girl, had I known that something like this existed, it would have given a lot of support, moral support to me creating that identity about myself. thank you But for there's so much I want to say, but just bring it on. I'm here to listen to you and contribute as much as I can. Oh, no, thank you so much. No, thank you for saying that, Ulka. I think even for me, growing up, of course, I've heard a lot कि बस इतनी सी height हो जाती है. मेरी height तो I'm 4'11", so मेरा ये Yeah. 5 भी हो जाती, 5 फुट की हो जाती ना तो भी ठीक था. बट अभी शादी में प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी. एंड आई थिंक इवन लाइक विद क्लोथ्स आई वाज ड्रेसिंग अप लाइक like I was mostly trying to be tomboyish. I don't know if that came from me wanting to like feeling like यार मेरे लिए कुछ नहीं है, शायद मैं प्रॉपरली बहुत गर्लिश नहीं बन सकती हूँ, बहुत प्रिटी नहीं हूँ तो गर्लिश नहीं बन सकती. आई डोंट नो वेयर दैट केम फ्रॉम, बट इट्स जस्ट वेरी इंटरेस्टिंग दैट आई हैड अ स्ट्रगल विद माई बॉडी. एंड व्हेन आई सॉ दैट माई यंगर सिस्टर्स वर ऑल्सो फीलिंग दैट लाइक दैट was when I felt कि यार it's enough and we should really start talking about. जब भी हम अब कितनी सारी कॉन्वर्सेशन होने लगी है. आई नो आपने भी बात किया है कि स्किन टोन को लेकर बहुत कॉन्वर्सेशन होती है, किसी के ऊपर वेट के ऊपर कमेंट करना भी सही नहीं है, बट आई थिंक हाइट की बात होना भी बहुत जरूरी है और वो इतनी होती बिल्कुल बिल्कुल यार. है. अब कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से शुरू करूँ बट आई एम वेरी प्राउड कि एज एन एक्टर भी सी टीवी फिल्म्स रिप्रेजेंट करते हैं सोसाइटी को एक हद तक, काफी हद तक. बाकी चीजें सिनेमैटिक लिबर्टी के जरिए राइटर्स, डायरेक्टर्स, मेकर्स अपनी कहानी प्रोजेक्ट करते हैं. आई बीन लकी कि जब मैं झांसी की रानी कर रही थी, मैं महज 11-12 साल की थी और इट वाज मतलब एज अप्रोप्रिएट था. पर मेरे साथ हमेशा ऐसा रहा है कि मैं अपने एज से कम दिखती हूँ. मेरे जो भी कंटेम्प्रेरी एक्टर्स थे झांसी के दौरान मेरे दिमाग में एक इनसिक्योरिटी डाल देते थे लोग कि भाई ये कब बड़ी होगी, ये बड़ी नहीं हो रही है, बड़ी नहीं हो रही है. तो मुझे याद है मेरे डीओपी कहते थे कि पता है मैं जब पृथ्वीराज के सेट पे था ना, तो जो एक्टर थे रजत टोकस, ही इज डन अ फैबुलस जॉब. तो कहते थे पता है वो ऊंचा होने के लिए बहुत सारे एक्सरसाइजेस करता था, ऐसा करता था, वैसा करता था. See, अभी now that I think as from an adult point of view, that's such a sad thing. Even I mean I don't know कि रजत को भी अगर ये था कि उसको अगर प्रेशर होता था कि उसको अगर if he wants to continue the show, he better grow up sooner. And in this pressure of wanting to grow up sooner or look taller and all that, इस इनसिक्योरिटी ने बहुत लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में जितने चाइल्ड आर्टिस्ट को मैं जानती हूँ, तो मैंने भी वो चीजें करना शुरू कर दी. मुझे सिखाते थे लटको और पैर पे ईंट बांधो
ओ माय गॉड, यू हैव नो आइडिया। ये मैं हमेशा करती थी। और मुझे कोई कहता था अब तुमने हॉर्स राइडिंग की है ना, तो हॉर्स राइडिंग अक्सर जॉकीज करते हैं। आप हम्म। देखते हो जो जॉकीज होते हैं, दे वेरी पतीत, दे हम्म। पतीत बॉडी, स्किन हम्म। स्किनी एंड वेरी टॉट फिगर। हम्म। एंड वो खासियत उनकी यही है कि दे आर परफेक्टली फेवरेबल, देयर बॉडीज आर परफेक्टली अडेप्टेबल टू हॉर्स राइडिंग। हम्म। बिकॉज जितने आप भारी होंगे उतना हॉर्स पे लोड बढ़ेगा और हॉर्स ज्यादा फास्ट नहीं दौड़ पाएगा। सो इट्स सच अ फैसिनेटिंग थिंग। तो मैं सोचती थी हाँ अच्छी बात है ना, मैं छोटी हूँ इसलिए मैं बहुत अच्छी हॉर्स राइडिंग करती हूँ शायद। और जो मेरे सामने जितने बाकी एक्टर्स थे घोड़े उनको उठा फेंक देते थे, बट आई वॉज स्ट्रगलिंग। मुझे हमेशा से लगता था कि मेरी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है, क्यों नहीं बढ़ रही है, क्यों नहीं बढ़ रही है। एंड इट वाज सच अ स्मॉल एज टू थिंक अबाउट दीस थिंग्स। वो पता लगे आई यूज्ड टू look up to the internet how to grow tall, this and that. Yes, yes. I wonder all what my fans are going to think right now. And school में भी यार, whenever I would go back, I would see, oh, ये 7th standard में जो बच्चा था अभी वो मुझसे भी बड़ा हो गया, या कोई लड़की बड़ी हो गई है। और इतना पर्सनली ले लिया था, इतना सीरियसली ले लिया था कि वो एक ऐसी फीलिंग आने लगती है कि आई एम नॉट स्पेशल, व्हाई Yes. एम आई नॉट गिफ्टेड, व्हाई एम आई नॉट ब्लेस्ड, व्हाट इज रॉन्ग विद मी। और फैमिली पे भी कभी कभार फैमिली मेंबर्स भी बोले अरे ये तो अभी भी छोटी है। हमारा तो बिहारी फैमिली है, सो अरे क्या हुआ, इसको खिलाओ पिलाओ तो खाती पीती नहीं है। ये तो ताना हमेशा पड़ता है, थोड़ा और खा लो, मतलब क्या खाना खाने से हम अचानक से बड़े हो जाएंगे लाइक। एंड जब फैमिली कमेंट करते हैं तो मुझे सबसे फनी लगता है, क्योंकि आप लोगों के तो जीन्स हैं ये, जिससे हम लाइक हम हाँ सब ना, जीन्स है, हम क्या कर, आप भी वैसे ही दिखते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक फैमिली में बहुत कम होता है कि कोई 6 फीट का है और कोई 5 फीट का इज इट एन अचीवमेंट टू लुक टॉल? है। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और क्या शॉर्ट करना है इस जो सदी में, क्या करना है टॉल होके? ठीक है एक जमाना था, हाँ आज से जब कई साल पहले, 100 साल पहले जब आपको युद्ध पे जाना था तो शायद कभी वो एडवांटेज होता, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मस्कुलर टॉल बॉडी। ठीक है बट अभी इसकी जरूरत नहीं है अनलेस यू वांट टू जॉइन द आर्मी। और अनफॉर्चुनेट पता, मैं आर्मी भी ज्वाइन करना चाहती थी तो मैं और मुझे पता चला कि आर्मी के लिए भी एक क्राइटेरिया है हाइट का। और मैंने कहा उसका क्या, जो मेरे अंदर जो देशभक्ति है उसका क्या, क्या ये मैटर नहीं करता इफ आई जस्ट वांट टू जॉइन द आर्मी। सो यार माय टीनेज हैज बीन अ रोलर कोस्टर। फिर मैं मॉडलिंग ट्राई करना चाहती थी कभी। वहां पे तो हाइट का लाइक एयर होस्टेस एंड मॉडलिंग, ये दो प्रोफेशंस आई हर्ड सो मच कि पीपल डोंट इवन अप्लाई। एंड ट्रू ही है, क्योंकि उनके कैटेगरीज रियली लाइक क्राइटेरिया है। ये मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, ऑल ऑफ दीज पैजेंट्स दे हैव दीज क्राइटेरिया फॉर हाइट। एंड मिस इंडिया में क्यों, आई डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज लाइक क्यों है? इंडियन की एवरेज हाइट 5 फीट है। 5 feet है या and it is such a goddess height. So no hate to the tall girl, but if you're talking about beauty, then beauty comes in all sizes and packages, in या all shapes and colors. या So why can you not appreciate that? मुझे याद है मैं एक शो देखा करती थी डिज्नी पे, दैट्स सो रेवन। आई डोंट नो अगर आप लोग यस ने यस। सो दैट्स सो रेवन में जो प्रोटैगनिस्ट है, एक एपिसोड मुझे याद है, शी कॉल्ड द थिंग आउट ऑन द विक्टोरिया सीक्रेट मॉडल जैसा जो रैंप वॉक होता था जिसमें मॉडल्स बहुत ही एनोरेक्सिक, चलो लेट्स नॉट टॉक, बट शी डिफाइड दैट एंड शी वॉक द रैंप एज अ फुल, जिस जिस स्पीशीज, जिस जेनेटिकली शी इज लाइक अ थिक वेरी heavy girl, curvy girl, and yet she walked the ramp and she believes that is how it is. but ये इंक्लूसिविटी बहुत लेट आई है। यस। फिर एक्ट्रेसेस में भी ऐसा होता था। आज भी मुझे ऐसे कई मैसेजेस आते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स के, मुझे कॉल करके पूछो उनका तुम्हारी हाइट क्या है। नहीं नहीं, एक रोल था वो, उसमें उनको ना हाइट 5'5" के ऊपर ही चाहिए एक्ट्रेस। आपको एक्ट्रेस नहीं चाहिए लगता है, आप मतलब कद काठी वाली, मतलब अगर आपको कास्टिंग भी ऐसे करनी है तो इट्स, तो यार हाइट की वजह से तो बट देयर हैव बीन प्रोज एंड कॉन्स टू इट ऑल्सो। कई बार आई हैव बीन लकी कि जस्ट बिकॉज मेरी हाइट छोटी थी, बिकॉज उनका रिक्वायरमेंट ये था कि हीरो की हाइट छोटी है तो ही डज नॉट वांट अ टॉलर एक्ट्रेस, तो उनको छोटी हाइट वाली एक्ट्रेस चाहिए। सो फील्स बैड, आई हैव बीन लकी इन दैट वे कभी कभार कि चलो छोटी हाइट की वजह से मुझे मिल गई एंट्री। बट feels bad कि my acting or my presence, my face value did not matter as much as my. एग्जैक्टली। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मी इज कि फॉर एग्जांपल अगर हम पायलट्स की बात करें, वहां पर जेन्युइनली मशीनरी ऐसी होती है कि किसी के हाथ अगर नहीं वहां तक पहुंचे, इट विल बी अ प्रॉब्लम एंड यू नीड टू एक्ट क्विकली। बट इन प्रोफेशंस लाइक मॉडलिंग, इन प्रोफेशंस लाइक एक्टिंग, तो आपके पास कितना, आप कपड़े वैसे बनाओ कि किसी भी बॉडी टाइप के ऊपर फ्लैटर करे, या फिर आप एक्टिंग में तो देर आर लाइक पट्टाज जो आप यूज Yes. करते हो। तो फॉर एग्जाम्पल देयर वाज दिस really amazing doctor who came on our podcast some time back. She's a surgeon, award winning surgeon. She was saying कि जब वो जाती थी इनिशियली, सब लोग उनको देख के ऐसे मतलब एक्ट करते थे कि ये क्या सर्जरी करेगी। एंड देन शी बेसिकली befriended a nurse एंड उन्होंने पट्टा रखना शुरू किया, और ऐसे उनके सारे जो भी सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स थे रखना शुरू किया कि उनको दूर ना करना पड़े, फटाफट वो सर्जरी कर सके। एंड शी स्टार्टेड डूइंग अमेजिंग वर्क। तो उसके बाद में उनकी हाइट मैटर ही नहीं करी।
लेकिन हर एक प्रोफेशन में हम किसी छोटे हाइट के पर्सन को देखते ही ये बना लेते हैं कि इसके बस की नहीं है। बच्ची दिखती है तो मतलब बच्ची ही होगी। सो इट्स जस्ट लाइक सच अ अनकॉन्शियस बायस जो आप किसी के अपीयरेंस के ऊपर, अब आप तो जो कह रहे हो दैट इज लाइक किसी को बिना देखे आपने चांस ही नहीं दिया कि यार चल तुम ऑडिशन पे बुलाओ, एंड आई नो यू Exactly. very like यार give me a chance, I'll give 18 auditions, I'll do things, but give me the opportunity to audition and then मुझे बोलो कि अच्छा ठीक है तुम्हें एक्टिंग नहीं आई। बट ये चीज कि किसी की अपीयरेंस के ऊपर, इट्स इवन वर्स देन आई वुड से लाइक कई बार देयर इज लॉबिंग एंड देयर आर फेवरेट्स एंड ऑल ऑफ दैट, उससे भी ये वर्स्ट चीज है क्योंकि वहां पे फिर भी चलो किसी के नेटवर्किंग की वजह से कोई पिकअप हुआ है व्हिच इज आल्सो अ स्किल। यहाँ पे तो इट्स जस्ट लाइक आपने कुछ देखा ही नहीं है देखा अंदर ही नहीं है और बस हाइट पे आपने रिजेक्ट कर दिया से। या सिंपली बिकॉज ऑफ द हाइट। या अरे देखो तो सही, व्हाट इफ यू लाइक व्हाट आई ब्रिंग टू द टेबल, व्हाट एग्जैक्टली इफ आपने जो सोचा था उससे मैं कई गुना बेहतर हूँ। एग्जैक्टली आप कुछ, हाँ, मतलब ठीक है। यू नो व्हाट, देयर इज कल्चर आल्सो हमारे बॉलीवुड में। नाउ दे आर ओनली कास्टिंग मॉडल लुकिंग पीपल, मॉडल। यार एक जमाना था जब रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा जैसी एक्ट्रेसेस यूज्ड टू लाइक रूल बॉलीवुड। और अभी व्हाट यू सीइंग इज जस्ट मोस्टली प्लास्टिक, टॉल, स्किनी। एब्सोल्युटली नो हेटर्स, नो हेटर्स। बट अ एंड लॉट टॉल की बात नहीं है, मॉडल्स, नो या मोर एक्टर्स। No, see, it will be fallacy on my behalf by calling them a certain way. Of course, everybody's now, but everybody looks the same. Nobody looks, alike. And I think the average Indian women are, heighted around 5 feet, and matlab, that is the average Indian height. So I mean, would be nice to have more actors who can represent that. Yeah. and you were asking what your fans are thinking. I think there are a lot of short girls who are saying, listen, I'm short also, I have a height difference with my husband and I love it, which I think is so like even if I some absolutely think, yeah. even in relationships it's very cute to have like a height difference with your partner. If you have that Yes. on TV, if there's like a tall guy hugging a shorter girl, it'll be the cutest thing. So I guess like I hope people, there is some awareness that comes around this. But yeah. Yeah. सो उल्का अगर हम शुरू से शुरुआत करें, राइट, आपने एक्टिंग में यू स्टार्टेड एक्टिंग एंड Mhm. कोर्स बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, बहुत ज्यादा सपोर्ट, इन्वॉल्वमेंट आपकी फैमिली का रहा है। सो कहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई एक्टिंग की, कैसे स्टार्ट हुई, एंड देन लाइक वो इन्फ्लुएंस जो था फैमिली का, हाउ डिड दैट शेप द काइंड ऑफ चॉइसेस दैट यू मेड व्हेन यू जस्ट स्टार्टेड योर करियर? um, शुरू से शुरुआत करूं तो मैं जैसे ही मैंने जन्म लिया इस दुनिया में, मेरे डैड ऑलरेडी एक्टर थे। अब उनकी कहानी इन शॉर्ट में अगर बताऊं तो ही वाज बोर्न एंड रेज्ड इन बिहार, इन सहरसा। आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन सेइंग दिस। तो जिस जगह से वो थे, जिस क्षेत्र से, बिकॉज ही इज ऑल्सो स्ट्रगल विद हाइट प्रॉब्लम्स एंड व्हाट नॉट। माय डैड इज 5'6", 5'6" or 5'7", which according to him and everybody or the film industry apparently isn't enough, you know. So and we are all dark skinned, okay. I don't know why मैं अभी क्यों लाइट लग रही हूँ for some reasons. कई कई pictures में disease में, but see, does not matter. So my dad तो he ran away at the age of 15 from this place called Saharsa near, जहाँ पर लोगों की सोच भी नहीं पहुंची थी about being an actor. वहां पर लोग, हमारे बिहार में लोग सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स की पढ़ाई करते हैं, अप्लाई करते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि इट्स इजियर, गवर्नमेंट जॉब लग गई तो लाइफ सेट है। और या तो इंजीनियरिंग, यूपीएससी पढ़ाई या डॉक्टर। हमारे फैमिली में सब वही है। बट ही वांटेड टू बिकम एन एक्टर। वो भाग कर आ गए मुंबई, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। वो मैं कहानी नहीं बताना चाहती कि कितने पैसे लेकर आए थे, कहाँ कहाँ से होते थे, बिकॉज वो लिटरली हैज लिव्ड दैट। सो यार, सबसे ज्यादा मेहनत तो मेरे डैड ने कर ली कि मैं मुंबई में पैदा हो सकी। तो इट्स अ ग्रेट सिटी। सो आफ्टर आई वॉज बॉर्न, सो द थिंग इज, हमारे फैमिली में 3 शेड्स ऑफ, 2 शेड्स, जैसे मैं अगर मैं कलर की बात करूँ, सो माई डैड इज वेरी डार्क स्किन टोन, माई मम्मा इज वेरी लाइट स्किन. So I have been a dark one. My brother is the caramel one, and then my sister is like very fair. She's like vanilla. Okay. So because of that, I had faced a lot of colorism remarks, Comparisons. comparisons. And I think I'm sure, my siblings must have faced their own. Because society को ना, अच्छा 3 बच्चे इतने अलग शेड के कैसे हैं? ये सारी चीजें. My mama is beautifully heighted I think my mama is also 4'10", and my dad is 5'6" or 7". एंड आई थिंक मम्मा इज वेरी ब्यूटीफुल. मेरी मम्मा को सब ना मौसमी चैटर्जी बोलते थे या राखी गुलजार बोलते थे, बिकॉज शी इज इतनी छोटी एंड प्रिटी. या एंड सो यार, that is my मम्मी पापा का डुओ. माय फादर हैड स्ट्रगल्ड his years, his जवानी in the film industry to make a place for him. And yet उन्होंने इस फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी, इतने अनसर्टन फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए, उन्होंने हमें इतनी अच्छी एजुकेशन दी, इतनी अच्छी परवरिश दी. मेरे मम्मी पापा ने मिलके, tribute to my mama's sacrifices also. And then I decided at the age of 6, 7, I asked Papa, can I
मतलब ड्यूरिंग माई पापा को देखती थी सेट्स पे जाते हुए, शूट करते हुए, और कहीं ना कहीं खून में तो होगा ही मेरे ख्याल से। सो बीच बीच में ना मेरी नजर कमेंट्स पे भी जा रही है, एंड इट्स सो स्वीट, कितने प्यारे प्यारे कमेंट्स है। Exactly. I think people are getting really inspired. Where you are from, what your height is, what you're saying, how you're looking about everything. हाँ, सो स्वीट यार, कमेंट्स बहुत अच्छे हैं। मैं डेफिनेटली आई एम गोइंग टू लुक एट दैट लेटर। तो बचपन से मैंने शुरुआत की ऑडिशंस देना, एक दो सीरियल्स भी मैंने किए, जिसके बारे में झांसी के पहले किए हुए जो भी प्रोजेक्ट्स है शायद लोगों को पता नहीं है। झांसी के जस्ट पहले मैंने सात फेरे भी किया था, इट वाज अबाउट कलरिज्म, एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी, वेरी क्लोज टू माय हार्ट, एंड आई गॉट टू प्ले सलोनीज डॉटर सांवरी। तो एनीवे आई एंजॉयड माय करियर, बट यस, हाइट को तो जब तक आप छोटे हो तो कोई कुछ नहीं बोलता, जब तक आप छोटे हो, लेकिन जैसे आप अपनी टीनेज ईयर्स हिट करने लगते हो ना, आपको तो पर्सनली वो जो स्कूल में होता है ना, वो किड्स कैन बी वेरी मीन। शायद टीचर्स या फैमिली मेंबर्स उतना नहीं बोलते हो, ठीक है, कजिन से थोड़ा बहुत कंपेयर करते हैं, वो भी बुरा लगता है। अब सबकी जेनेटिक्स अलग है। मेरे बड़े पापा की जो बेटियां हैं, माय कजिन्स, डो दे वर ग्रोइंग टॉल एवरी अदर ईयर। Me and my sister, my sister is also like 4'10" or 4'11". Lovely. Actually, we used to like pray to God, 1 इंच दे दो यार, एक 1 इंच और दे दो, ताकि अगली साल सुनना ना पड़े यार दूसरे को, थोड़ा तो बढ़ा दो चलेगा। तो हम बहुत नाराज भी होते थे मम्मी पापा से, बहुत ज्यादा। मतलब यार बहुत ही अनरीजनेबल चीज है, बहुत ही स्टूपिड चीज है, बट आई डोंट नो क्या कहूँ मैं। व्हेन आई थिंक अबाउट दिस, नो, आई विश आई हैड माय सिस्टर नेक्स्ट टू मी, क्योंकि कुछ साल में भाई तो हमारा ऊंचा हो गया, वो निकल गया, हम लोग को क्रॉस करके धोखा दे दिया उसने। हम लगा था वो भी हमारी बिरादरी का रहेगा, लेकिन वो लंबा हो गया कैसे। एंड कहीं ना कहीं आई टू बीट माई सेल्फ अप एंड बी लाइक, नहीं नहीं, आई थिंक मुझे स्पोर्ट्स ज्यादा करना चाहिए, एंड आई ऑलवेज बीन अ वेरी स्पोर्टी गर्ल, वेरी स्पोर्टी। झांसी के अलावा मुझे लगा वो शिट यार, किसी ने, मेरे एक्शन डायरेक्टर ने बात डाल दी थी, हॉर्स राइडिंग करने से हाइट रुक जाती है। अरे हाँ, और मेरे पापा को भी, कोई मेरे पापा बोलते थे यार क्या करें, नहीं करवाना चाहिए था शो, नहीं। मैंने कहा पापा, आई थिंक झांसी की रानी का आइडेंटिटी इज द बेस्ट आइडेंटिटी आई कैन एवर हैव एज एन एक्टर और टीवी शो। आई वुड नेवर रिप्लेस इट फॉर एनीथिंग। सो and बिकॉज one for life, Ulka. Like it will be spoken about for years and years and years to come. Because जैसे आपने खुद कहा कि it's like a blessing to yes, it have is that character, the qualities of that character, and grow up with that kind of with character. that character. Yeah, आई फील लाइक मुझे स्ट्रॉन्ग फीमेल एम्पावरमेंट और एक फीमेल हीरो हीरो बनने का एक क्या कह सकते हैं, एक वर्कशॉप मिल गया। एक मतलब मुझे ऐसा लगता है Exactly. मेरा एक डिप्लोमा हो गया उसमें, एट द वेरी क्रूशियल एज। आई रियलाइज कि yes, this is what a woman is. A woman is not the बहू that we you see on a TV show who's taking अत्याचार और वो अपने आप को बिछा रही है सबके लिए, that is not who how a woman should be idolized. सो यार, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यार, टीनेज ईयर्स में बहुत होता रहता था। मैं कभी कभार मेरे फैमिली डॉक्टर से पूछती थी क्या करूं, कुछ ऐसा है क्या। आई वाज रेडी, लाइक शट अप। मुझे कहीं का रिसर्च में भी पता चलता है यार, देयर आर सम एचजीएच हार्मोन या कुछ है वगैरह जो आप अपने टीनेज ईयर्स में लोगे तो ऐसा होता है ना। आल्सो हर्ड, आई डोंट नेम पीपल इन द इंडस्ट्री हु हैव टेकन दीस इंजेक्शंस टू ग्रो फास्टर। Mm-hmm. बट मेरे डैड कहते थे बच्चा, डोंट गो अगेंस्ट नेचर एवर। आई वुड से नेवर गो, मतलब जो भी है एम्ब्रेस। माय डैड आल्सो चेंज, आई आल्सो चेंज। धीरे धीरे आई रियलाइज कि व्हाट, कोई अननेचुरल। और मेरे डैड हमेशा एक बात कहते थे कि जो उन्होंने स्ट्रगल किया है ना थिएटर के दौर में, माय डैड वाज एन एक्टर, और एंड ही वाज आल्सो वन ऑफ द मिड हाइट्स इन हिज। तो सी आई ऑलवेज कीप टॉकिंग माय फादर, बिकॉज मेरे पापा ना मेरा हम सब बच्चों का सोर्स रहे हैं अबाउट इन्फॉर्मेशन एंड मोटिवेशन। तो पापा कहते थे, रिमेम्बर उल्का, राजेंद्र प्रसाद जी की, लाल बहादुर शास्त्री, आई थिंक राजेंद्र प्रसाद जी, मुझे याद नहीं आ रहा, जिनकी हाइट बहुत छोटी थी, जो प्लीज गाइस कमेंट्स में मुझे बताइए ना, आपको याद है राजेंद्र प्रसाद, हाँ जी। I also don't, राजेंद्र to प्रसाद be जी। honest, हाँ. तो वो कहते थे कि उनकी छोटी हाइट थी, बट इट्स ऑलवेज अबाउट पावर डायनामिक। तब की भी बात है, बिकॉज इंडिया वाज स्ट्रगलिंग एंड सेल्फ एस्टीम इज द बिगेस्ट थिंग एंड द राइट एटीट्यूड। कहते थे कि राजेंद्र प्रसाद जी से सीखना चाहिए उनका, कि उनमें ही वाज सो सेल्फ प्रोक्लेम्ड, सो श्योर अबाउट हिमसेल्फ। उनको पता है कि उनके पास, मतलब उनकी विद्या, उनका विजडम, उनका विट, उनका इंटेलिजेंस कैन नॉट बी कंपेयर्ड ऑन दीज फिजिकल एस्पेक्ट्स। तो तो वो ही डिड नॉट, उन्होंने कभी अपने आप को कम नहीं आंका। तो सामने अगर कोई टॉल ब्रिटिशर है कोई भी, आई थिंक वो मुझे कहानी याद नहीं है खास, लेकिन वो मतलब ये था कि वो उन्हें ऐसे नहीं देख रहे थे, वो ऐसे ऐसे ही रहते थे और ऐसे दिखते थे, ऐसे ही बात करते थे। सो ये आई वुड ट्राई टू रिकलेक्ट दैट। तो मेरे पापा कहते थे इससे ये सीखना चाहिए उनका, कि यू डोंट हैव टू बी टॉल, यू जस्ट हैव टू वॉक टॉल। तुम एक रूम में घुसो भी ना, डोंट डोंट फील लाइक, डोंट टेक द प्रेशर ऑफ द वर्ल्ड, यू वॉक टॉल एज इफ इट्स अबाउट वो इट्स, आई डोंट मीन टू ग्लैमराइज टॉल, कि टॉल इज अ डेस्टिनेशन वी वांट टू रीच। मतलब चलो तो आप ऊंचा चलो, कॉन्फिडेंट पोस्चर होना चाहिए, कॉन्फिडेंट पोस्चर होना चाहिए। एंड और मतलब आप खुद कॉन्फिडेंट फील करोगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखेगा। आई गेस दैट्स व्हाट इट इज। अगर आप कॉन्फिडेंट ही होगे, बहुत ही मीक वे में रूम में एंटर करोगे, तो शायद लोग समझ जाएंगे।
Exactly. I want to know some of your struggles, Baba. I mean, I think enough said. I mean, I am an actor और grow होने के बाद today I am 5'2.5. Okay. Which I feel like मेरे फैमिली में हमारे फैमिली में मैंने बहुत अच्छा कर लिया ऐसा मुझे ऐसा लगता है और मुझे लगता है गिवन माय जेनेटिक्स माय मम्मी इज लाइक चलो तूने मुझे क्रॉस कर लिया मैं खुश हूँ ऐसा उन्होंने कहा लेकिन मेरा एक था कि मैंने बचपन से देखा मुझे 5'6" नहीं हो तो आई डोंट हैव द राइट टू लिव Yeah, ऐसा था yeah, no, true. Same. क्योंकि सपनी तो मेरे फिल्म इंडस्ट्री ही थी एंड द वर्ल्ड इज नॉट एक्सेप्टिंग अस व्हाट एब्सोल्युटली डू आई डू है ही लुक्स के बारे में। हर एक चीज मतलब कोई बंदा इतना परफेक्ट दिखता है एंड व्हेन दे कम एंड से यार मुझे बोला मेरी नोज फिक्स करा दो, मुझे बोला मेरे दांतों में कुछ करा दो, आई जस्ट एम लाइक बट यू नो द इंटरेस्टिंग थिंग इज मैं अभी इस ड्यूरेशन में जब मैं करी थी इससे पहले आई वाज एक्चुअली अ बैंकर, तो मेरा दूर तक कोई लेना देना नहीं था कंटेंट से। मेरे फोन पे इंस्टाग्राम नहीं था, मैं मतलब कुछ फैशन मैंने पढ़ाई की थी बट आई लेफ्ट lived such a good life. But I'm इट। glad you're here to make a difference. Even if you did come on social media, Yeah. it's for a cause. That's good. Exactly. And I love it. I love it because I think I'm just being myself and I'm doing things that I agree with as a person. Like जो मेरे प्रिंसिपल से अलाइंड नहीं है वो मैं कभी नहीं करती। बट इस दौरान मैंने इतनी वुमेन से बात करी है एंड ऐसा कोई भी नहीं है जिसको कभी ना कोई इनसिक्योरिटी नहीं रही है, यू नो। एंड अ लॉट ऑफ इट एक्चुअली कम्स फ्रॉम किसी ने बचपन में कुछ कमेंट कर दिया। तो फॉर एग्जाम्पल आई मेट विद अ गर्ल जिसको शायद 10 years की एज में उसकी मम्मी ने बोला कट स्लीव्स मत पहनना तुम्हारे आर्म्स अच्छे नहीं लगते। तो वो आज 35 years की हैं और वो आज तक नहीं पहनती हैं क्योंकि उनको आज तक वो कमेंट याद है कि यार मेरी मम्मी ने तब कमेंट किया था। एंड वी वर जस्ट सिटिंग एंड टॉकिंग ऑल ऑफ अस वुमेन इन अ ग्रुप एंड सडनली शी वाज लाइक यार अच्छा तब से मैं ये होल्ड ऑन कर रही हूँ। एंड देन शी सेड अब मैं जब वापस जाऊंगी तो मैं कल कट स्लीव्स पहनूंगी, अकेले ही जाऊंगी, किसी को दिखाऊंगी नहीं, बट मैं पहनूंगी। एंड लाइक सिमिलरली देयर इज अनदर गर्ल आई नो हु बिकॉज ऑफ हर स्किन टोन शी नेवर वोर व्हाइट। उसे लगता था यार मेरे ऊपर व्हाइट नहीं अच्छा लगेगा क्योंकि मेरा राइट आई मीन लाइक द वे यू आर रिएक्टिंग मे बी इट्स लाइक अ शेयर्ड स्टोरी। It is, it is. How do I tell you? हम्म। So many things यार जैसे फैमिली में लोग कभी सभी सिस्टर्स के लिए कपड़े खरीदते थे ना मेरे कपड़ों को लेकर खास करके उनको सबसे ज्यादा टेंशन होती थी इसके ऊपर क्या अच्छा लगेगा सबसे ये। डार्क कलर का कुछ होगा ना जैसे एज अ किड यू लाइक पिंक यू लाइक समथिंग फ्लोरेसेंट यू लाइक समथिंग व्हाइट यू लाइक बट यार मुझे सबसे ज्यादा मरून रेड दे दिया जाता था तो एज अ किड यू डोंट लाइक दीज कलर्स राइट आई एम गेसिंग वेरी अब मच ऑफ कोर्स कलर्स या एवरीबॉडी वांट्स टू वेयर बार्बी ये पिंक। मत पहना वो मत पहनना अरे इसका ऐसा लगेगा कलर वैसा कलर लगेगा कोई भी आके उठ के मेरी मम्मी को बोला इसको बेसन से रगड़ो इसको उससे रगड़ो इसको ऐसा करो उसको वैसा करो ये सब तो बोलते हैं बहुत चीजें हैं हाइट के लिए भी ऐसा मसाज वैसा मसाज ऐसा सब है वो फिजियोथेरेपिस्ट ये डॉक्टर पीडियाट्रिशियन तो ऐसा भी नहीं है मैं गई बिकॉज आई वाज वेरी सीरियस एट द एज ऑफ 13-14 में इतनी ओवर इनसिक्योर थी कि मेरे मम्मी बोलती पापा इधर से पीडियाट्रिक और एन ऑर्थोपेडिक जो मदद कर सकते हैं प्लीज लेट्स गो मैं बहुत सारे इंटरनेट पे मैं और मेरी बहन हमने इनफैक्ट एक होम्यो यू वोंट बिलीव आई डोंट नो इफ आई से दिस वे and this is going to be on the internet for a long, long time. But me and my sister, we had gone to a clinic, and I don't want to name this. It's a homeopathic clinic. We were so worried about our height कि हमने एक हाइट बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन ली थी ऐसा उन लोगों ने क्लेम किया था या लिटरली वहां पे क्लेम किया था कि टीनेजर्स जो अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए एंड हमने अपने मॉम डैड को बहुत प्रेशर किया पापा शायद दिस इज आवर सोल्यूशन लेट अस ट्राई दिस सो मी एंड माय सिस्टर यूज्ड टू गो टू दिस क्लिनिक एवरी वीक टेक द मेडिसिन टेक दिस होम्योपैथिक मेडिसिन एंड वी यूज्ड टू ऑलवेज होप हम लोग रोज अपनी हाइट मापते थे कुछ या कभी कभी से उठ के थोड़ी बहुत आधी इंच बढ़ भी जाती थी रैंडमली एंड वी यूज्ड टू गेट सो हैप्पी कुछ दिनों में वो वापस छोटी हो जाती थी बिल्कुल सो बिल्कुल वो हम हमारा ना टिपटो दीवार से एकदम सटा के खड़े होते हैं कि यार उससे फर्क पड़ता है ना कि आप दीवार से कितना दूर हो, नहीं 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 ठीक से नहीं नापा होगा। बट उसका आप जो कह रहे हो एक्चुअली वो मैंने भी किया है एंड ये मेडिसिन लेने की वजह से मेरी पीरियड्स की साइकिल बिल्कुल लाइक आई गॉट सच हैवी पीरियड्स, मेरी बॉडी में इतनी हीट क्रिएट हो गई थी उसकी वजह से। तो आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमको मैसेज करते हैं दी मैंने ये ऐड देखा है, मैंने ये जूतों का ऐड देखा है, ये जूते पहने मैंने योको हाइट भी किया हुआ है, डॉक्टर के पास जाके वो ऐसे मम्मी की हाइट इतनी है पापा की हाइट इतनी है तो टोटल इतनी होगी उसमें से माइनस कर दो 2 इंचेस तो इसकी हाइट इतनी है हाँ वो सब मैथ एक सारी। सेकंड मैं बस एक चार्जर कनेक्ट कर लेती हूँ स्वीटहार्ट जस्ट हाँ सेकंड श्योर श्योर। तो ये सारी मैथ्स और ये सारी कैलकुलेशंस और इवन लाइक सर्जरी तक की मैंने बात करी हुई है डॉक्टर्स से हाँ कि हाँ हाँ आई हाँ सीरियसली कंसिडरिंग कि यार अगर मेरी हाइट 2 इंच बढ़ जाए। बट देन आई थिंक समहाउ शायद मेरे पेरेंट्स भी कभी कभी मेरे मेरे केस में ऑनेस्ट हूँ आई थिंक मेरे पेरेंट्स शायद बहुत चाहते थे कि मेरी हाइट इंक्रीज हो जाए और ओ माय गॉड बहुत पुश भी किया। तो लाइक ऐसा नहीं था कि उन्होंने मुझे कभी कम फील कराया कि नहीं यार तुम हाइट की वजह से कुछ कम हो। बट जब कोई आपको बार बार बोलता है कि यार
चल आज डॉक्टर के पास जाते हैं, चल तेरी हाइट मेजर करते हैं, ये कर ले नहीं तो हाइट कम रह जाएगी, तो आपको लगता है कि आप कम हो। सो आई थिंक ऐसे अभी भी बहुत सारे, और वो भी अपनी तरफ से ही ट्राई कर रहे थे ना। कोई बच्चा आके स्कूल से बोलेगा यार मुझे बॉनी बोला है, मेरा मजाक उड़ाया, तो उन्हें भी लगेगा हम क्या करें कि हम इसको फिक्स कर दें। बट आई गेस दैट्स वेयर दैट होल पेरेंटिंग थिंग कम्स की ये मत बोलो कि यार चल कुछ करते हैं हाइट के बारे में, बस ये बोलो कि यार तुम परफेक्ट हो, कोई कुछ बोल रहा है तो वो तुम्हारी हाइट के ऊपर कमेंट करना बंद कर देंगे तो वेट के ऊपर कमेंट करेंगे, उसके ऊपर बंद कर देंगे तो करियर के ऊपर स्किन कमेंट। के बारे में, करियर के बारे में, फेस के बारे में आप कुछ कुछ भी बोल लें यार, वही कहा है ना किसी ने, कुछ तो लोग कहेंगे। और यार कहीं ना कहीं फिर मैं भगवान से भी नाराज हुई थी इन माई यंगर ईयर। मैं बहुत प्रे करती थी उनसे। मैं व्रत रखा करती थी फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई हैव टू टेल यू, नो मैटर हाउ मच इट लुक्स लाइक एज एन एक्टर, सी वो बात अलग है कि मैं हमेशा अपनी एक्टिंग पे फोकस करती थी। मेरे डैड मुझे अच्छे आइडल्स की बात बताते थे कि बेटा जया बहादुरी एक एक्टर थी, such a good actor. She was so small heighted back then, but she was a fine actress. You can't do anything to replace what she brings to the table. So become so good at what your qualities are कि these things would not matter. In fact, they will inspire others. डूड, किसी ने सचिन मलिक ने टेक्स्ट किया है, कमेंट किया है, सीरियस बात चल रही है। ऑफ कोर्स सीरियस बात चल रही है। बहुत सीरियस बात चल रही है, मजाक की बात नहीं है सचिन जी। आप भी अगर किसी को जानते हैं जिनकी हाइट कम है, प्लीज उनका मजाक ना उड़ाएं प्लीज। अरे लड़कों को भी, इफ आई हैव टू से, मुझे लगता है लड़कियों से थोड़ा ज्यादा, आई विल नॉट, टेंशन लड़कों को भी होता है। उनको तो बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है उन्हीं के बिरादरी के लोग। और लड़कों को बहुत प्रेशर होता है, उन्हें भी होता है शादी को लेकर, हर चीज को लेकर बहुत ज्यादा। उन्हें ऐसा महसूस करवाया जाता है अगर कोई लड़के की हाइट कम है कि इज नॉट मैन इनफ, ही इज नॉट मैस्कुलिन इनफ, विच इज आई थिंक वही हमारे सोसाइटी का कलेक्टिव प्रॉब्लम है। हर चीज पे इतनी टिप्पणी देना या कंपेयर करना किसी को। सबके जेनेटिक्स अलग होते हैं। And then there are people who will go and interview guys and girls and guys and be like, will you date a short girl? Will you date a short guy? And then women will be like, I'm just, नहीं यार इतनी हाइट तो होनी चाहिए। फिर दूसरा बंदा बोलेगा खुद कितनी से हाइट है, लड़का इसको उतना चाहिए। So I think it's just like a cycle. सब एक दूसरे को नीचे खींचने में लगे हुए हैं rather than like। अगर मुझे कोई आके पूछे ना, मुझे सब कुछ, दिस इज व्हाट की एज ए सोसाइटी मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन का फायदा क्या। जो हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, हमारे सामने वी आर एक्सपोज टू सो मच इन्फॉर्मेशन, वी आर एक्सपोज टू सच गुड कंटेंट एंड गुड थॉट। ऐसा नहीं है कि हमें इफ वी आर अ बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाट वी कंज्यूम और द कंटेंट दैट वी सी, तो क्या मैं आज तो जो देख रही हूँ कि जो क्या सास बहू वाली चीजें एक्चुअली घर पे होती है, नहीं होती है। जो हम सावधान इंडिया इतना देखते हैं, शायद कहीं ना कहीं क्या डू वी बिकम लाइक दैट, नहीं ना। या करेक्ट, या अगर हम सोशल मीडिया पे कोई अच्छी चीज पढ़ते हैं तो उसको इनकलकेट करना चाहिए, उससे अपने निजी जिंदगी में भी आजमाना चाहिए और वो अप्रोच रहना चाहिए। हम ओके एक लड़की की कहानी पढ़ना चाहिए या, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे कोई पूछे, हमें सोसाइटी में लिटरली ये बात कहनी चाहिए कि आई विल ओनली डेट और मैरी अ पर्सन जो मुझे अच्छा लगेगा या जो मुझे सही लगेगा। इट्स वेरी सिंपल। और व्हेन इट कम्स टू लव, हम ऐसे ही लोगों से यूजुअली I don't think looks will not matter after the first few dates. What will really matter is how the person is. आपके उनके साथ बातें कैसे हो रही है, क्या है। क्या आई थिंक हाउ डू आई टेल यू, मतलब रानी मुखर्जी has been a big inspiration to me. मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद है मेरे डैड ने मुझे मेरे डैड शाहरुख सर के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और उन्होंने उनके साथ काफी फिल्म्स की है। तो शाहरुख सर ने हमें चलते चलते फिल्म की प्रेमियों पे आफ्टर पार्टी में बुलाया था, प्रेमियों पे बुलाया था। और चलते चलते फिल्म की आफ्टर पार्टी में, बहुत छोटी थी, आई थिंक मैं शायद 7-8 साल की रही हूँ, उससे भी छोटी रही, 6 साल की। तो उस पार्टी में मैं कहीं घूम रही थी और फिर बाद में फाइनली हमें शाहरुख सर मिलाते रानी मैम से। आई रिमेम्बर मैं उन्हें देखकर आई वाज लाइक, शी वाज ड्रेस्ड अप इन दिस ग्रीन साड़ी, सो प्रिटी, और बाकी आसपास सब लंबे लंबे लोग थे मॉडल से, बट आई थिंक आई फाउंड हर लाइक अ प्रिंसेस। मुझे ऐसा लगा वो एक गॉडेस है। सो दैट्स वेयर इट गिव मी अ लिटिल होप, if I want to be, if I want to grow up, I want to be like Rani Mukherjee, regardless of what her height is, regardless of what, but I want to be as beautiful as her. And, then the only thing left to me is be a good example for all the young girls, for all the people. मुझे देखिए, लेकिन ऐसा नहीं मुझे ये नहीं चाहिए कि मुझे देखिए कोई बोले कि इसकी हाइट कम है लेकिन टैलेंटेड है, ऐसा नहीं चाहिए। शी इज अ टैलेंटेड गर्ल, व्हाई शुड एनीबॉडी हैव टू जज। So true. सो कॉल्ड ऊंचे ऊंचे लोग हैं हमारे इंडिया में, भाई तुम जाओ नॉर्डिक कंट्रीज में, वहां पे आपसे भी ऊपर लंबी लंबी लड़कियां हैं। सो व्हेन आई ट्रैवल इंटरनेशनल, बहुत ऊंची ऊंची लड़कियां होती है। आप लड़कों को भी मतलब शर्म आ जाए, ऊंचे से ऊंचे लड़कों को शर्म आ जाए, उनकी हाइट इतनी ऊंची है। नाउ डू वी नो, आर दे हैप्पी विद इट? और व्हाट इज देयर कल्चर उनकी कंट्री का, वी डोंट नो, राइट? शायद इट्स अ जेनेटिक थिंग इन देयर कंट्री।
वो इतने ऊंचे होते हैं या इतने गोरे होते हैं। तो बट ही शुड बी एम्ब्रेस डूड, हमारा कलर ऐसा है, हमारे बाल नेचुरली ब्लैक है और हमारी आईज ब्लैक है, ये सारी चीजें एज इंडियन हमें एम्ब्रेस करना चाहिए, खुश होना चाहिए हमारे एस्थेटिक्स को लेकर। इवन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इतने सुंदर सुंदर लोग हैं, यू विल सी सो मेनी ब्यूटीफुल वुमेन एंड दे आर शॉर्टर देन इवन 4'10" से भी, वो और भी नहीं, बट दे आर सो प्रिटी। Yeah. And how does it matter? And interestingly, so many people in the West actually, वो जाते हैं मतलब धूप में टैन लेने के लिए, एग्जैक्टली। उनकी स्किन टोन इतना पसंद है, और हम अपने लोग, हमें ये पता नहीं कहाँ से चलता आ रहा है इतने सालों से कि, बट एनीवे अब तो काफी आई थिंक अवेयरनेस आ गई है इसके बारे में। आई थिंक अब लोग डरते तो एटलीस्ट किसी को बोलने से, पहले तो उनका मुंह खुल के कुछ भी बोल देते थे एंड कुछ भी कमेंट्स भी कर देते थे, जो अभी भी करते हैं, बट आई थिंक अब थोड़ा फिर भी कॉन्शियसनेस आई है कि यार ध्यान से बात करनी है, सोच समझ के बात करनी है। डूड तुम्हारे साथ वो कभी हुआ है कि स्कूल में जब क्लास फोटोग्राफ होता था, हाँ जी, हमेशा आगे, सबसे आगे। हमेशा आगे उसका फायदा होता था, बट कभी कभार यू वांटेड टू बी विद योर फ्रेंड्स, यू वांटेड टू बी इन द सेकंड लाइन, खड़े रहने का मन होता है। एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली एंड मुझे असेंबली में सबसे आगे खड़े रहना नहीं अच्छा लगता था। आई वाज जस्ट लाइक व्हाई, मतलब हर बार क्यों, और ये कंपटीशन होता था हमारे बारे में कि लाइक कौन आगे है कौन पीछे। हम छोटे लोग भी एक दूसरे को बोलते थे, हम एक दूसरे नहीं, तू आगे जा, तू छोटी है, तू छोटी हाँ है। हाँ, एग्जैक्टली, यस, सो ट्रू। ये सब होता था। आई थिंक मैंने कितना देखा है, बच्चे अभी लाइक कोई चेंज ही नहीं हुआ है, अभी भी यही सारे कॉन्वर्सेशन ही चल रहे हैं सबके साथ में। मुझे याद है ना, कई बार एनुअल फंक्शन में तो मैं अपने स्कूल के ना ड्रामेटिक से बहुत नाराज होती थी, क्योंकि ऑन एन बहुत कम बच्चे शॉर्ट हाइटेड थे, पता नहीं क्यों ऐसे इतने हैं। मतलब सी आई वाज ऑलवेज एंथुसियास्ट अबाउट डांसिंग, एक्टिंग, परफॉर्मिंग, पर जब भी ऑडिशंस होते थे ना, बहुत कम चीजों में जो मैं पार्ट भी लेती थी ना, तो वही कुछ ही छोटी लड़कियां होती, उनको फिर बाकी ऊंचे ऊंचे बच्चे चाहिए ताकि वो फॉर्मेशन ग्रुप का ऐसा हो। एग्जैक्टली, इवन डांस में उनका, मेरे को तो कितनी वही वही डांस में लाइक किया कि यार जिसकी हाइट कम है, मतलब डांस का हाइट से क्या रिलेशन है। इन मोमेंट्स में आपको, जो आप कह रहे हो ना कि यार आपको लगता है कि मैं सबसे गुस्सा थी, आई थिंक यही वो मोमेंट्स होते हैं आपको लगता है मैं कुछ कम हूँ क्या, ऐसे क्यों मुझे फील करा रहे हैं मेरी हाइट की वजह से। दैट्स व्हेन यू, आई थिंक ये इनडायरेक्ट चीजें हैं जिससे लोग फील करने लगते हैं ओ यार मेरे हाइट में कुछ प्रॉब्लम है। एक मिनट, आई थिंक हमें देखो, एक प्रीनियोज अंडरस्कोर 95 ने राइन एक बहुत अच्छा कमेंट किया है, उसके एक और कमेंट है like, उन्हें भी बहुत ग्रोइंग ईयर्स में बहुत फेस करना। उन्होंने कहा हमारे कर्नाटका में ज्यादातर यही शब्द यूज करते हैं, कुल्ली, कुंटी, शॉर्टी, टिंगू एंड व्हाट नॉट। इट साउंड्स अनोइंग, इट्स वेरी सैड यार। टिंगू तो मुझे बहुत बार बोला है, जैसे मैं स्पोर्ट्स, अच्छा मैं बचपन से लिटरली मैं जेन्युइनली टॉम बॉयज रही हूँ, मुझे सच्ची में खेलना बहुत पसंद था। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि नाराज हो गई होंगी मैं उन चीजों से, गर्ल्स ग्रुप्स और उन सभी चीजों से, तो मैं आई वॉज ऑलवेज लाइक, मुझे लगता था लड़के इतने जजमेंटल नहीं, थोड़ा बहुत छिड़ेंगे चिड़ाएंगे, लेकिन वो एग्जैक्टली पॉलिटिक्स करने, ऐसा मुझे लगता है पॉलिटिक्स से अच्छा वो देर ऑलवेज मस्त खेलो कूदो मस्ती करो। तो मेरे बिल्डिंग में भी सब ऐसे बच्चे लड़के होते थे, तो आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद देम, तो मैं ज्यादा करके स्पोर्ट्स खेलती थी, स्पोर्ट्स में भी यही होता था। लेकिन लेकिन अल्टीमेटली जब ग्रुप फॉर्म हो रहा है, सपोज मैं फुटबॉल खेल रहे हैं, तो फुटबॉल में अरे ये छोटी है, अच्छे से डिफेंस नहीं कर पाएगी, तो मेरे को डिफेंस पे डाल देते, फ्रंट एंड पे नहीं रखते थे, या गोलकीपर बनाते थे और मेरे तक बॉल ही नहीं आने देते थे। फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं कभी कभी सीक्रेटली फिर मैं अपने ड्रिल्स प्रैक्टिस करती थी, फुटवर्क प्रैक्टिस करती थी, किक्स का प्रैक्टिस करती थी। तब मुझे जाके कई बार ऐसा हुआ है कि जब मैं रनिंग गोलकीपर रही हूँ, जब हम लोग बिल्डिंग में खेलते हैं, तो मैं जाके आगे तक आती थी, तो स्किल्स दिखाने पड़ते थे, आई हैड टू अर्न माई सेल्फ अप टू द टॉप सो मेनी टाइम्स। इट वॉज क्वाइट अ जर्नी यार। फिर मैंने जानबूझ के ऐसे स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दी जिसमें टीम की जरूरत ही नहीं थी, बैडमिंटन। तो बैडमिंटन भी मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गई थी, उसमें क्या यू यू इधर प्ले सोलो यू प्ले डुओ। बट एक चीज है कि इफ इवन इफ आई वाज नॉट टॉल, बास्केटबॉल में तो लेते ही नहीं थे, रिजेक्ट, कितना भी खेलने का मैंने रिजेक्ट, क्योंकि हाइट नहीं है। मुझे एक बात बताइए, स्कूल को क्या करना है? अच्छा तुमको जस्ट बिकॉज जीतना है तो फायदा क्या कि स्कूल में स्पोर्ट्स इज एन ऑप्शन, एंड इफ ऑल द किड्स हैव द ऑप्शन, इफ दे हैव द लिबर्टी टू चूज अ स्पोर्ट, यू आर नॉट इवन अलाउइंग देम टू प्ले। या हाउ सैड इज दैट? मतलब मेरे स्कूल में लिटरली ऐसा हुआ है। ठीक है, आपको अगर कॉम्पिटिटिव मैचेस के लिए यू वांट टॉल किड्स ओनली, ताकि आपका सक्सेस रेट हाई रहे, कि द चांसेस ऑफ गेटिंग, अगर उनको आपने भेज दिया तो एटलीस्ट हमें सीखने का भी हक नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली आई थिंक वो बायस बहुत ही अर्ली, जल्दी से ही ये लोग डाल देते हैं। बट इंटरेस्टिंग ये है उनका, आप इतना हंस के ये सारी बातें कर रहे हो राइट, बट आई एम श्योर ये बहुत डिफिकल्ट जर्नी रही है राइट। मतलब ये तो अब है कि हम शायद एक्सेप्ट कर पाए अपने आप को, या हमें बहुत अच्छा लगने लगा ये सारी चीजों के बारे में। लेकिन बीइंग इन द इंडस्ट्री जहां पर लुक्स ही सब कुछ है, या फिर एज इट इज, इवन लुक्स की भी हम बात ना करें, हाइट की भी हम बात ना करें, वैसे भी एक रोल अदा कर रहे हैं, कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, इट कैन समटाइम्स बी वेरी डिफिकल्ट टू नो कि हम रियल में कौन है, हम किस चीज के लिए स्टैंड करते हैं। तो ये कैसे रही आपके लिए जर्नी की यार, कब आपने अपनी खुद की पर्सनालिटी
कैरेक्टर्स हटा के, लोगों के एक्सपेक्टेशंस कि आपको कैसे दिखना चाहिए, कैसे एक्ट करना चाहिए हटा के, यू फाउंड योर सेल्फ कि दिस इज हु आई एम, दिस इज व्हाट आई लाइक, दिस इज व्हाट माई वैल्यू सिस्टम इज? आई थिंक मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली यू नो व्हाट, यू हैव टू गिव अप. इट्स अ वेरी I don't want it to sound coward. You have to give up and prioritize what really matters. Give up on these obsessions. You have to realize that some things are these things are obsessions. These compulsive behaviors have been put. वो चलो, वो मैं कितनी भी इंटेलेक्चुअल साउंड करने की कोशिश नहीं करना चाहती. मेरी जर्नी में यही हुआ कि मुझे रियलाइज हुआ कि आखिर मुझे क्या करना है. मुझे एक एक्टर बनना है. आई वॉन्ट टू बी एन एंटरटेनर. आई बेटर नॉट लूज साइट ऑफ दैट. मुझे अच्छा एक्टर बनना है, मैं उस पर एक्टिंग पे फोकस करूंगी. कहीं ना कहीं बीइंग ऑन टीवी शोज, बिकॉज टीवी सीरियल्स में मैंने नोटिस किया इतना प्रॉब्लम नहीं होता. हाइट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम. व्हेन इट कम्स टू फिल्म्स इट इज. गॉड नो फॉर व्हाट रीजंस, ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन होता है. अब धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही है. मेरी तेलुगु फिल्म भी जब मैं करती हूँ, जब मुझे अभी भी फॉरवर्डेड मैसेज आते हैं, क्यों लोग ऐसा लगता है कि यू नो इतनी हाइट की लड़की होनी चाहिए, इतना हाइट का मॉडल होना चाहिए. फनी, कहीं ना कहीं हमारे ऑडियंस की भी गलती है, सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री की गलती नहीं है. अगर मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूं, मुझे डिफेंस के बारे में उतना नहीं पता. मुझे एविएशन के बारे में नहीं पता कि क्यों एविएशन की स्टाफ जो एयर होस्टेस हैं या पर्सस हैं उन्हें एक सर्टेन हाइट का होना चाहिए. बिकॉज चार्म तो चार्म होता है. आई मीन, आप बॉलीवुड हीरोज को ही देख लीजिए, आमिर खान को देख लीजिए, आप सलमान खान को देख लीजिए, शाहरुख सर को देख लीजिए. दे आर ऑल वेरी एवरेज हाइट, बट दे आर विलिंग. Top actress of the country, Alia Bhatt, is petite. She's 5'1". Oh no. She's not. She's not shorter than. Yeah. No, she's taller. I've met her. You met her? Yes, Aditi Rao Hydari. I have met her. She's shorter, but she wears heels. Fatima Sana Sheikh. She's short. She's 5. Aditi Rao Hydari is 5. Rani Mukherjee is 5. Vidya Balan is 5. Such powerful actresses. So yeah, Anushka Sharma, Katrina Kaif वगैरह तो बहुत ही ऊंचे हैं. अगर मैं आपको, दीपिका पादुकोण is very tall. बट अगेन, अभी कहने के लिए तो दीपिका पादुकोण को भी कहा था कि ये तो बहुत ही ऊंची है, बहुत ही ऊंची है. दोनों ही साइड्स में प्रॉब्लम है. वो दोनों ही साइड में बेचारे. लाइक 5 बस सबको एक जैसा होना चाहिए, सबका स्किन टोन एक जैसा होना चाहिए, ये गेहूं रंग नहीं होना चाहिए. मतलब लिप्स इतनी बड़ी होनी चाहिए, आंखें इतनी बड़ी होनी चाहिए. ओह माय गॉड. मुझे तो वो सेटअप ऑफ शादी में ही मुझे गलत लगता है कि वाइड, मैं तो अपनी बेटी को किसी के सामने, यू नो, एक फैमिली के सामने चल के चाय पेश करने के लिए तो मैं नहीं बिठाने वाली भाई, कि वो आके मेरे घर पे आए, मेरी बेटी को जज करे कि वो उनके घर की बहू बनने के लायक है या नहीं. जब वो अपने शादी करने के बाद वो उनकी ही सेवा करने वाली है, उनका ही वंश आगे बढ़ाने वाली है, अपने शरीर को पे पूरा कष्ट झेलकर. और तुम होते कौन हो उसको जज करने वाले? तुम कौन होते हो? तो मैं अपनी बेटी दूं ही क्यों? मैं अपनी बेटी को अपने पास ही रखूंगी, ऐसा मुझे लगता है. आई वुड रादर नॉट. मेरी बेटी को जो कोई अच्छा लगेगा, जिस दिन जैसे समझ आएगा, अगर कोई सच्ची उसके योग्य होगा तो वो राम जी की तरह स्वयंवर मैं अपने आप को प्रूव करेगा. That's the world I live in यार. No, absolutely. I do not believe in this कि मैं क्या कहते हैं क्या इसको, जब लड़का लोग देखने आते हैं, I find it very weird. दिखाई और लड़की को देखने के लिए आते हैं, बायोडेटा जाता है, फिर बायोडेटा में लोग अपनी हाइट 2 इंच ज्यादा लिखते हैं, फिर बायोडेटा में लोग अपना रंग अलग दिखते हैं. तो ये सब अभी भी चल रहा है कि आप कुछ, फिर जब लोग मिलते हैं तो देर लाइक ये तो आपने कुछ और लिखा था बायोडेटा में, तो ये था. बट हमें कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैम आप हाइट के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? सो rupadevi.m.g.5. तो चलो ठीक है, ये तो हम दोनों ने इसके बारे में बात कर लिया. आज मैं इस वक्त लाइव इसलिए हूँ with rare.reach and our beautiful Prateek here is because इस बात के लिए अवेयरनेस आए कि पतीत फैशन को हम थोड़ा सा उजागर करना चाहते हैं. अगेन, पतीत एक फ्रेंच शब्द है, which means somebody with a small height body frame, which is very common in our country, जिसके लिए हमें कोई नाम नहीं देना पड़ा, लेकिन उसके बुरे नाम है छुटकी, बटकी, टिंगली, टुंगली, जो भी पता नहीं क्या क्या नाम है, लेकिन एटलीस्ट फ्रेंच. हाँ, नाटी. बट पतीत एक बॉडी टाइप है, जैसे स्विमर्स बॉडी कहा, जैसे पता नहीं मैं आपको कैसे समझाऊं. तो एक छोटे हाइट की जो लड़कियां हैं या लड़के हैं, उसे पतीत बॉडी फ्रेम कहते हैं. अब वो हाइट का रेंज आई थिंक 5'2" तक जाता है, 5'3" तक जाता है, जो पतीत कहलाते हैं. एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट. हमारे सोसाइटी में सभी तरह के बॉडीज हैं, छोटे बड़े, थोड़े फैट, थोड़े स्किनी, कोई बहुत ही स्किनी है. तो सबकी अपनी अपनी डिसेबिलिटीज है, बट ये डिसेबिलिटीज सॉरी नहीं है, लेट मी करेक्ट दैट. वी आर वेरी लकी कि वी आर हेल्दी, हैप्पी, और हमारे अपने जेनेटिक्स हैं. तो पतीत फैशन कहा जाता है इससे, कि आप छोटे बॉडी फ्रेम्स को किस तरह से एलोंगेटेड या उसको, मतलब जो उसे अप्रोप्रिएट लगे उन बॉडीज पे. बिल्कुल. मकसद ऊंचा दिखने का नहीं है, बट मकसद
अच्छा दिखने का है बस. सो दैट इज अ फैशन कॉन्सेप्ट दैट यू हैव क्रिएटेड विद योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड आई एम वेरी प्राउड अबाउट दैट. आई होप अगर आप कुछ प्लीज कंप्लीट करना चाहते हैं बाय द मीन्स ऑफ रेयर रीच, तो इन्होंने ये ब्रांड क्रिएट किया है जिसके जरिए सभी पतित लड़कियां अपने फैशन प्रॉब्लम्स जो यूजुअली हमें शॉपिंग करते वक्त आते हैं, चीजें अवेलेबल नहीं होती, हमें कई चीजें कस्टमाइज, मेरी बहन को हमेशा कस्टमाइज करना पड़ता है बिकॉज उसका बॉडी टाइप petite तो है ही, लेकिन वो एक्सेस साइज में भी वो एक्सेस में फिटिंग कम मिल जाएगी लेकिन उसके लेंथ में प्रॉब्लम होगी या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा. सो यार वी आर जस्ट डिस्कसिंग एज टू गर्ल्स ओवर हियर, एज टू सिस्टर्स ओवर हियर, एंड you guys can feel free to talk about this. एंड अगर आपके पास कोई अपने पर्सनल ऐसे इंस्टेंसेस हैं, सो गो ऑन. So Prino ED said, when I sent my proposal, I sent it unfiltered. And I even faced rejections. But भगवान ने मेरा मिलन एक ऐसे व्यक्ति के साथ किया जिन्होंने मुझे जज नहीं किया. Congratulations. I wish मुझे आपका नाम पता होता. But she's such a sweetheart. She has Yes, commented yes, consistently. yes, please. बाकियों की तरह बकवास नहीं हो रही है. But thank you so much. No, I'm very happy for you कि आपको सही इंसान मिला. और सही इंसान ना मिले तो प्लीज दूर ही रहिए इंसान से. हाँ, correct. मुझे तो यही लगता है. कि उन लोगों को ये है कि अगर हमने हाँ, की तो हम सेटल नहीं हुए. आप अगर खराब seriously. इंसान से शादी करोगे ऐसे लाइफ में अनसेटल होगे कि मतलब सब तहस नहस हो जाएगा. क्या जरूरत है? But I'm just glad you said one thing, which is कि I see a lot of creators who are themselves petite and they're like, these are my hacks as a short girl to look taller. And I get very upset by that. Why are you as a short girl asking other women to look taller? There's a difference. Exactly. Now you're further Doubling giving the- it to the insecurity. Yes. Of course you are. Yeah, that's exactly my point. So अगर उनका मैं आपसे पूछूं, ऐसे कोई टिप्स हैं जो आप फॉलो करते हो जिससे कि आपको लगता है कि यार that helps me as a petite woman? As a petite woman, now the second step is to realize that you have different body frames. Everybody, somebody can have a bigger torso, longer torso. Right. Again, torso से मेरा मतलब है कि शोल्डर से लेकर आपके वेस्ट तक, यानी कि कमर तक जो प्रपोर्शन है बॉडी का, वो रेशियो जो है वो कितना ऊंचा है. क्या वो आपके लोअर बॉडी से, कुछ लोगों की टांगे लंबी होती है, लोअर लेग्स, तो उस हिसाब से भी देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. कुछ लोगों पे क्रॉप टॉप्स अच्छे लगेंगे अगर उनका अपर बॉडी टॉर्सो जो है वो थोड़ा ऊंचा है. नहीं, आई थिंक मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ. सो आई थिंक आई अंडरस्टैंड कि अगर मेरा लोअर बॉडी ज्यादा लंबा नहीं है तो आई एम इनफैक्ट लाइक वेरी 50-50. मेरा अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी वेरी 50-50. सो आई ड्रेस अकॉर्डिंग टू माई बॉडी. कभी कभार अगर मुझे लॉन्ग जीन्स पहननी है, कुछ हाई वेस्टेड पहनना है, तो आई वेयर अ क्रॉप टॉप. और अगर मुझे कुछ लो वेस्ट पहनना है तो आई वेयर अ टॉप विच इज लॉन्गर इन साइज, लॉन्गर इन लेंथ. या कभी कभार आई लव टू वेयर हॉल्टर टॉप्स ताकि मुझे अपने आर्म्स फ्लॉन्ट करने हैं, मसल्स फ्लॉन्ट करने हैं. Yeah, if I wear a full sleeves, so accordingly, if I wear a belt sometimes when I want to add attention to my cinched waist, if I don't have one on a dress. Yeah, of course. Like We all have days I when need to wear heels. Honestly, I hate wearing heels. अगर मेरा बस चले तो मैं हर चीज पे स्पोर्ट शूज पहन लूं. बट मुझे फ्लैट्स पहनना नहीं पसंद है, so I go for a little small wedges. नहीं, ब्लॉक heels, छोटे छोटे. हाँ, I like to do. most hated kind of footwear, which you are like, ये मुझे नहीं पहनना पसंद बिल्कुल भी. Pencil? Yeah, same. And Oh my god. I hate kitten heels. I cannot even try kitten heels because I just feel like किसने बनाए हैं? I have tried it, although मुझे उसमें चलने आता है, मैं उसमें घूम सकती हूँ, मैं डांस भी कर सकती हूँ उसमें, because that's a part and parcel of my career. That's something prerequisite of my career, and I keep working on my skills. पता नहीं कब स्किल कोई कौन सी कहाँ काम आ जाए, है ना? पता नहीं कब मुझे शायद कोई ऐसा कैरेक्टर मिले जो दिखे कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, और I would love to prove that. Facet of your personality, Ulka, because you've done a bunch of different things, right? There was a phase where you really enjoyed music, and that was something you wanted to pick up. Then you mentioned कि यार I was earlier really interested in, like I wanted to get in a slightly non-acting related profession. Then even within acting, it was like TV serials, then moving on to movies. Movies maybe like there is Bengali movies, there are Telugu movies. So you've done a whole bunch of things. So ये कहाँ से आता है? Just like this versatility and wanting to do so many different skills. मेरा दिमाग और मेरा दिल सिंक में नहीं है. वैसे आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे मॉम डैड की परवरिश है, और मेरे मॉम डैड ने हमेशा से बढ़ावा दिया है कि जो मन में आए करो, और फॉलो योर हार्ट. एंड कहीं ना कहीं कभी कभार इंस्टिंक्ट्स के पास होती हो, कभी कभी नहीं होती हो, और एक इन द एंड यू वांट टू जस्ट से दैट यस आई लिव्ड अ लाइफ एज एन अडल्ट राइट नाउ. आई कैन से यार आई वाज हमेशा मेरे सपने बदलते रहते थे. जब मैं छोटी थी मुझे याद है, मुझे सबसे पहले तो क्रिकेटर बनना था. जिस दिन मैंने वुमेन्स वर्ल्ड कप देखा अभी रिसेंटली, तो तब मुझे लोग बोलते थे यार औरतों का कोई सीन नहीं है क्रिकेट में, है ही नहीं, तो तेरा कुछ होने नहीं वाला है, ये हटा दे दिमाग से. और तो 1-2 साल के बाद मैंने हटा दिया. मैं बहुत क्रिकेट खेलती थी. फिर बाद में एक्टिंग तो करनी थी, मुझे एक्टर भी बनना था, लेकिन ये भी बोलते थे कि यार डार्क डस्की हो तो शायद वो यू विल नेवर बी अ मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस, यू विल ऑलवेज बी अ फ्रेंड या ऐसा वैसा. बट केप्ट ट्राइंग.
आई केप्ट ट्राइंग एंड आई एम ग्लैड कि जब मेकर्स चेंज होंगे, जब ऑडियंसेस चेंज होंगे, तो अपने आप वक्त चेंज होगा तो चीजें पूरी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आई कंप्लीटली एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग कि यार इट्स अस, हमें ही चाहिए कि, और अब हो भी रहा है क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इतना आ रहे हैं इनटू प्रोफेशन बिकॉज वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों को फॉलो करते हैं। तो आई थिंक अगर लोग भी सही लोगों को फॉलो करेंगे, एंड बाय सही आई जस्ट मीन लाइक पीपल हु यू रियली रिलेट टू, सही फॉर यू, हम्म। हम सब एक 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 अपना डिफरेंट वर्जन दिखा सकते हैं इंटरनेट पे, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। आई थिंक हम सब एक एक्सटेंट तक वो करते हैं, वी कांट बी 100% लाइक आवरसेल्व्स एंड पुटिंग इट आउट देयर। Absolutely, we are all scared of being judged. Yeah, for everything that we say, like today we just have to be so careful. I can imagine for you, एक Yeah. और का मतलब कोई क्या निकाल दे, मतलब हम ही अभी बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में ऐसे फिल्टर चला था कि यू नो लाइक या इट्स जस्ट you, it's a way of protecting ourselves also, because कब कौन क्या हाँ, किस चीज का मीनिंग निकाल दे, you never know, and you've not said it in that way, but yes. कोई वर्ड भी करेक्ट नहीं है आज की डेट में। आई होप कि देखो, पता नहीं बुरा लगने के लिए अभी आई मीन मीनवाइल आप जब बोल रहे थे मैंने कई अच्छे बुरे कमेंट्स भी देखे, बिकॉज आई केयर, बिकॉज यूजुअली मैं नहीं देखती, यूजुअली मेरे फैंस मैम मेरा नाम ले लो ऐसे कर दो वगैरह वगैरह, बट मैंने यहाँ देखा कि कुछ लोगों ने ऐसा लिखा कि वी डोंट केयर अबाउट योर शॉर्ट और नॉट, वी जस्ट केयर अबाउट यू उल्का मैम, दैट्स व्हाई वी आर वाचिंग। तो फिर एक लड़के ने लिखा कि नो नो लुक्स मैटर एंड दैट्स व्हाई आई एम वाचिंग दिस लाइव बिकॉज इट्स यू एंड आई लाइक योर लुक। और दैट तो दैट इज नॉट हेल्पिंग एनीबडी, मतलब दिस जस्ट शोज योर माइंडसेट। अब एक लड़का हमें पूछ रहा है यहाँ पे, आई थिंक आई एम अनिल साहू का एक क्वेश्चन है, जस्ट वन क्वेश्चन मैम, व्हाई गर्ल्स ऑलवेज प्रेफर हाइट मैन, प्लीज आंसर। सो ऑन मेरे बिहाफ से तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आई डोंट नो अबाउट ऑल विमेन, बट विमेन, मैं जिस तरह की लड़की हूँ, आई रियली, बिकॉज आई हैव स्ट्रगल्ड विद लुक्स एंड अपीयरेंसेस माई सेल्फ, so and the moment I started loving myself is when the world thought I'm lovable and I'm beautiful. So and I will keep doing that because चाहे वर्ल्ड मुझे प्यार करे ना करे, मुझे अपने आप को प्यार करना होगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। और अनिल साहू जी, आपके क्वेश्चन के बारे में, सो आई एम नॉट अ वुमन हु प्रिफर्स अ मैन हैज टू बी टॉल, ही जस्ट हैज टू बी अ ग्रेट पर्सन, अ गुड पर्सन। और अगर रोमांटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मुझे उस इंसान के विचार अच्छे लगने चाहिए। आई गेट रियली इम्प्रेस्ड बाय व्हाट दे डू, हाउ दे ट्रीट पीपल, व्हाट इज देयर कंट्रीब्यूशन, उनके सपने कितने बड़े हैं, उनके एक्शंस कितने बड़े हैं। So I think I judge men on the basis of their actions, and that's all. That's all I have to say. I don't know about you. you. no, same. My husband is not one of the tallest men, even Mm-hmm. by Indian average height standards. Perhaps he may be shorter by that, and Mm-hmm. never mattered to me how tall or short my partner is. I think दिमाग होना चाहिए, kindness होनी चाहिए, अच्छी value system होनी चाहिए। You're smiling. He makes you so happy. So I'm definitely sure he must be a great man. And you have chosen. You guys have chosen each other, and I hope you guys are blessed like that. Sounds like a man. A great man. That's how it should be. Yeah, कि यार अनिल साहू, आपकी क्वेश्चन का यही जवाब है, the way you treat a woman, the right woman, and if she chooses you back, you are quite a man. That's all I want to say. great. Because you don't have to be a tall person. Yeah, dude, I've Help seen so many models and so many actors जो यहाँ से जो सिर्फ जिम फ्रीक्स होते हैं, मैंने देखा है, हाइट बॉडी है पर दिमाग नहीं है, इमोशनल कोशेंट नहीं है, तो क्या किया जाएगा उसका? हर टाइम अपने आप को मिरर में देखना है हर 2 मिनट। ओ माय गॉड, लाइक इट रियली अपसेट्स मी व्हेन आई सी गाइस लाइक दैट, बिकॉज़ आई एम जस्ट लाइक रिलैक्स, काम डाउन, डूड। लेकिन इन ऑल मैं बिफोर लीविंग, आई थिंक आई विल ऑल्सो हैव टू लीव, बट मैं इन ऑल अगर सभी अपने व्यूअर्स से और आपसे यही कहना चाहूंगी, सबसे ज्यादा अगर मुझे ऐसा लगता है मैटर करता है कि आपके पास हाइट है या नहीं है जो भी, बट आई थिंक फिटनेस बहुत ज्यादा मैटर करती है ओवरऑल। जो मेरी लाइफ के मैं अपनी बहन से भी कहती हूँ या सबसे कहती हूँ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फिटनेस एंड हेल्थ। चाहे आप जो भी साइज या हाइट एंड बॉडी के हैं, बट ट्राई नॉट टू गेट इनटू अ वेरी अनहेल्दी जोन कि आपकी बॉडी पे फैट्स डेवलप हो रहे हैं, अननेसेसरी फैट्स डेवलप हो रहे हैं बैड लाइफस्टाइल और खाने पीने की वजह से। एक इंसान तभी अट्रैक्टिव लगता है, ये मैं जिन भी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की बात कर रही हूँ, चाहे हॉलीवुड बॉलीवुड में हो, हमें वो फिर भी अट्रैक्टिव इसलिए लगते हैं बिकॉज अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं, अपनी ड्रेसिंग और स्टाइलिंग का ध्यान रखते हैं। सो फिटनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई नो हम सब अपनी जॉब्स कर रहे होते हैं, टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिम्स जाने की शायद सुविधा ना हो या मेंबरशिप ना हो, बट ट्रस्ट मी, फॉलिंग इन लव विद फिटनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईटिंग राइट थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ईटिंग हेल्दी इज इंपॉर्टेंट, एंड स्टिंग फिट इज नाइस है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अल्टीमेट गोल तो वही है कि मैं मेरी बॉडी में अच्छे मसल्स रहे, मैं दिन दिन भर काम कर सकूं, मैं रनिंग कर सकूं, मैं एक्शन सीक्वेंसेस कर सकूं, डांस कर सकूं, और जिमिंग वगैरह है, जो भी सोर्स है, चाहे आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, उन सबसे अल्टीमेटली आप बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं। दैट इज व्हाट आई हैव सीन इन द फिल्म इंडस्ट्री, अच्छे से अच्छे एक्टर्स। सो दैट विल बी माय टिप, दैट्स Yeah, ऑल। and it shows on the face now, like one is glowing when one is feeling या healthy, स्किन अच्छी हो like skin जाती है। is healthy, yeah।
But Any see, last there's so much question? love coming your way. People are saying you're just so unfiltered. So I think that's so. I Thank you. say that I've been like interacting with her for the last 2 weeks now, and she's just so kind, so humble. You are Just as she is here, I interesting. think that's how she is. मैं कितने सारे questions ना ऐसे पूछना चाहती थी आपकी journey के बारे में, लेकिन आप इतने kind हो कि I think you just wanted to make sure that people get this message of height, Yeah. height Because I have struggled. positivity. Dude, I honestly, I don't much. अब मेरे fans भी जानते हैं. मेरा Instagram जब मेरी मर्जी होती है तब मैं आती हूँ तब मैं post करती हूँ. And I'm not very active because I want to focus on being an actor, not an influencer. At least not at the moment. But You are content creation is great. And आपका content, आपका जो brand है that you're working on is for a cause. And बचपन से मैं हमेशा से चाहती थी कि so now all the young girls out there or young boys, by the time your rare reach reaches a reach, it motivates them and gives them the validation that they are also seen and they have their own separate identity. So although separate होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन whatever that makes you feel seen, है ना, or understood. So I wish the well for your brand so much, and it's just a tribute to my younger Ulka. That's all. So that is the sweetest thing you have said. आपके कोई expectations हैं उनका as the first brand that is talking about height, that is making clothes for petite women? What do you think we should do, and what do you think we should not do? Like as a petite woman yourself, what would your expectations be from a brand that's building for the Indian petite woman? I think whatever you're doing is very nice. I've had a look at your grid, and the fact that आपका attitude बहुत right है. You don't want to inculcate the further insecurity about. Not मतलब यार ऐसे videos तो बहुत मिलेंगे Instagram पे या हर जगह कि how to look tall by dressing. Your choice if you want to look, but you are teaching people to love and accept themselves. yeah. So just dress appropriate to your body type. See, body types is something that you have to understand further. वो मतलब तुम्हारे audiences को समझना है. Because चाहे हर height and body में सबकी body frame अलग होती है, hourglass होती है, किसी की skinny होती है, तो have fun with it. I would say कि you can, there's a saying, you can never compete with the person who is having fun. So I would just want to say, have fun with it and don't be worried about any judgments. You have a niche, and I'm sure your audiences feel understood. So stay and stick with them and create for them. Have fun. That's Lovely. what I say. Yeah. So much for saying that, Ulka. And again, such an honor, such a pleasure to have you. Thank you so much for taking the time, being so kind, so gracious throughout. Thank you. It Thank means a lot. I think people really loved having this conversation with you. So much. Thank you for choosing me to be a part of your cause. Seriously. Thank you. Pleasure is mine. And I hope you have a lovely evening. Thank you. you. So do. Everybody have a nice Sunday, guys. मैं आती रहूंगी live में कोशिश करती हूँ. Okay, bye.